Today I'm going to start with the revision of the chapter Journey to the End of the Earth. And also, after the revision of this chapter, I'll be also giving you the explanation of agar aapka in the last few classes I have been repeatedly telling you that you may not be having a direct question तो है, but you may be asked to give an application based question. Like in business studies we already have, मतलब मेरा subject तो business studies है, I don't know about your science subjects. तो we have the questions कि अगर ये this is the way तो ये क्या है, मतलब they correlate. And sometimes there might be two chapters which might be related and you may be asked to give your views. So ऐसे questions के you can expect such questions. So I'll be giving you some examples on how such questions can come from this chapter and how you can write it. Journey to the End of the Earth is all about, if we look on the map of the world, I'm just giving you a very वियर्ड एग्जाम्पल कि अगर हम मैप को देखते हैं तो हमारा जो अंटार्कटिका है वो कहीं नीचे की तरफ आता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द एंड ऑफ द अर्थ. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द एंड, बिकॉज इट इज द एक्सट्रीम. ये हमारा एक्सट्रीम है, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक का आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट है. एंड हेयर इफ वी लुक, अगर हम अंटार्कटिका को देखते हैं तो इट इज सेड दैट द पार्ट्स what we call as South America, the part which we call as South Africa, India, Australia, ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो है once they were part of this लैंड मास, जिनको हम लोग अपने ज्योग्राफी में गोंडवाना बोलते हैं, which we call it as Gondwana region. And all these continents today, which are now a separate country or a continent, were parts of this large mass, which was called as Gondwana. So when you go to this place, that is आपका Antarctica, तो वहां पर you are able to find the amassing of ice. आपको वहां पर जो आइस है उस ग्लेशियर्स के अंदर यू कैन फाइंड द ट्रैप्ड कार्बन. आपको जो है वहां पर आपको कार्बन कार्बन डाई सॉरी कार्बन जो है वो आपको वहां पर नजर आता है. एंड वाइल वी आर studying the evolution, the science students might be well aware about this, I'm not that much. तो हम लोग कार्बन के फुटप्रिंट से एवोल्यूशन को पढ़ते हैं. So that carbon which is trapped in the ice glaciers of Antarctica is the way to study the evolution of Earth. This chapter is a travelogue. Travelogue मतलब it is an experience, a travel experience of the author. this is an this is a travelogue मतलब her journey to Antarctica, and the author here it is Tishani Joshi. She is the one. Now this is a मतलब कि दो शी इज इन इंडियन, लेकिन शी वॉज अ पार्ट ऑफ अ expedition which is called as students on ice program. ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस है, अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है, इफ ही और शी इज वाचिंग द ज्योग्राफी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह, उसके अंदर इसके कई बार आते हैं. एंड दिस इज अ रेगुलर प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड अक्रॉस, मतलब जहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड जो बच्चे होते हैं दे टेक पार्टिसिपेशन. डेफिनेटली इसका जो पैसा है काफी लगता है, इट्स इन लैक्स नाउ. एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय जॉफ ग्रीन. अब
जॉफ ग्रीन जो है उनका मानना है कि ही शुड टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एक्सपेडिशन, नॉट द एल्डर्स और द सेलिब्रिटीज। ये पेपर में, आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाई डज ही बिलीव इन टेकिंग द हाई स्कूल स्टूडेंट्स, नॉट द रिच, मतलब कि सेलिब्रिटीज और द एल्डर्स। बिकॉज उसका वो दो रीजन देते हैं। पहला, जो आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, लाइक स्टूडेंट्स ऑन you are curious in your nature, you have the physical energy, and besides, you all are the one who are going to decide for the future. You are the future citizens, you are the future politicians, you are the future doctors, you are the future engineers. तो अगर आपके पास में अगर आज का सच सामने होगा तो अब कल का फ्यूचर आप लोग अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। सेकेंड रीजन ही गिव्स इज दैट जो सेलिब्रिटीज होते हैं, दे आर देयर ओनली फॉर देयर ओन, अपना एंडोर्समेंट होता है उनके लिए। इट इज नथिंग अबाउट द ग्लेशियर्स और अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग और अबाउट द सिचुएशन। यू कैन आस्क एनी, मतलब कि डांस सेलिब्रिटी टू डांस इन योर मैरिज जस्ट फॉर फ्यू bucks। उनकी कोई अपनी कोई वो नहीं होता, वो तो सिर्फ एक पिक्चर है, एक वो मतलब कि एक वो निकाल के दिखाएंगे कि वी वर देयर। दे आर नॉट इन्वॉल्व, दे आर नॉट इन्वॉल्व। कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, वी डोंट नीड टू नेम द सेलिब्रिटीज वेदर इन द स्पोर्ट्स और वेदर इन एनी अदर एरिया, दे आर ओनली फॉर देयर ओन फेम और फॉर मनी। एंड दैट इज व्हाई जॉफ ग्रीन जो है, ही thinks that it is always better to take those people who are the real decision makers of tomorrow। ये आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दिस, ये जो ट्रैवलॉग जो उसने लिखा है, दिस इज अ जर्नी ऑफ 2 weeks, जो कि एक रशियन वेसल यानी कि रशियन शिप में गया था। एंड इट वॉज लेड बाय जॉफ ग्रीन। दे हैड टू क्रॉस, मतलब जो हमारी नरेटर है, शी हैड टू क्रॉस फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से लेकर उनको जो है डिफरेंट टाइम जोन, क्योंकि जब आप वर्ल्ड को देखते हो, इफ यू लुक इनटू दिस वियर्ड मैप, अगर आप इंडिया को देखते हो, इंडियन ओशन के बाद आपके जो आपका टाइम जोन है वो चेंज होता रहता है। एंड जो अंटार्कटिका वाला जो एरिया है वो आपका जो है, इट इज कंप्लीटली व्हाट वी कॉल एज ऑस्ट्रल समर। 6 महीने गर्मी, सॉरी 6 महीने धूप, जो 6 महीने ऐसा रहता है। एंड यू नो, अभी हम लोगों के यहाँ ठंड है, बट इट इज ओनली ऑस्ट्रेलिया वेयर इट इज समर राइट नाउ। तो इट इज, मतलब उनको जो है इतने सारे टाइम जोन, इतने सारे वेदर कंडीशंस को क्रॉस करते हुए दे हैड टू रीच द प्लेस अंटार्कटिका। Now, what she has already said is, which I have already told you, that India, Antarctica were part of the same land mass, जिसको हम गोंडवाना कहते हैं, some 650 million years ago। ये वो टाइम है जब आपके डायनासोर्स इंडिया, मतलब की वर्ल्ड में रहते थे। लेकिन बाद में व्हेन द वर्ल्ड स्टार्टेड सेपरेटिंग, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे, वॉल्केनो इरप्शंस होने लगे, many of the land mass separated from this area and drifted and formed into the modern day continents or countries। Like we are part of Asia, साउथ अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ सॉरी साउथ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है। एंड दिस इज वेयर यू आर एबल टू स्टैंड एंड सी द रियलिटी ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। अगर आप अंटार्कटिका की शक्ल देखते हो तो इट इज कंप्लीटली फुल ऑफ व्हाट वी कॉल एज आइस ग्लेशियर्स। आपके इतने बड़े बड़े आपको जो है आइस ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं, जो कि आपको ऐसा लगेगा एज इफ यू आर देयर इन द माउंटेन्स ऑफ आइस। लेकिन यही आइस ग्लेशियर्स जब आपके सामने ब्रेक होते हैं तो उनकी आवाजों से आपके कान फट जाएंगे। 90% of the ice is stored here, and you will find no trees, no animals, no buildings। मतलब जो आपका वहां जो, सॉरी नो बिल्डिंग्स, बट एनिमल्स में आपको वहां पेंगुइन्स मिल जाएंगे, सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, सील्स आपको मिल जाएंगे, बट यू विल नॉट फाइंड द होर्डिंग्स, बिजी बिजनेस, जहां पर लोगों के जो है, उसका नाम क्या है, टावर्स लगे हुए हैं ऑफ द कम्युनिकेशन। ओनली
few countries are taking this place, वो भी on permission for certain scientific projects. तो अगर हम इस जगह पर जाते हैं तो यू आर एबल टू फाइंड द रियलिटी. एक तो जब आप आइस पर जो नरेटर चली थी, after such a long journey, when they actually landed up on this area, जहां आगे उनका जो शिप था वो नहीं जा सकता था, तो वहां पर when they was walking on the ice, it was something beyond experience. It is very difficult to walk on the ice, लेकिन आइस के ऊपर वो चल रहे थे. दे कुड सी जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, आपके सील्स हैं, उसको वो लोग क्लियर वाटर, क्योंकि वहां पर ठंड इतनी है कि वाटर जो है वो आपका आइस बना हुआ है, और उस जगह पर वो लोग जो है आइस के ट्रैपिंग के नीचे वो लोग जो है उन एनिमल्स को पानी के अंदर देख सकते थे. They could see the whales, they could see the animals, everything, algae, everything underneath the sheet of ice. She says that when they visited this area, they found that little actions can bring significant changes. And when you go over there, when in front of you the glaciers melt, they break into pieces, you find out the result of global warming on such areas. क्योंकि ग्लोब वार्म होगा तो आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो आपका जो सी वाटर है उसका जो मतलब कि लेवल है वो बढ़ जाएगा, एंड यू आर एबल टू सी द ग्लोबल कार्बन साइकिल ऑल्सो. This is because of the overall quality of environment which is changing, even though there have been many debates. जो developed countries हैं उनका मानना है developing countries are responsible for the change in climate, whereas जो developing countries हैं उनका मानना है जो developed countries हैं they have already depleted the sources. But the result is whether it is मतलब कि the developing countries or the developed, there is change in environment. एक सबसे बड़ा change आजकल हम लोग देख ही रहे हैं. Suddenly it is too cold, suddenly it is too hot, suddenly it rains, suddenly it stops raining. This is all the environmental change. और ये environmental change शायद हमें नहीं समझ आ रहा है, but this is actually starting from the extremity of the world towards the extremity, और हम तो बीच में है. उसका वो एक एग्जाम्पल देती है फाइटोप्लैंक्टन. Phytoplanktons are microorganisms. They are very important for maintaining the ecological balance in that area, क्योंकि वो जो है इनके प्रेजेंस में the trees are making the food. यानी कि एक चेंज in the photo period would directly affect the presence of phytoplankton, which would indirectly affect the trees and its growth. So this is very important. यानी एक छोटी सी चीज, take care of the small things and the bigger things will get into position. ये हमारा एक quotation है which can come from this chapter. यानी जब हम छोटी सी चीज कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम साइकिल कहते हैं, इकोलॉजिकल साइकिल, तो वी से कि जो ग्रास है उसका क्या यूज है. बट ग्रास इट इज कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो सॉइल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर इंटर रिलेटेड. दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. Then this grass is eaten by the cattle, and this cattle is giving us the milk. Milk is an industrial product which is used for domestic as well as industrial product. यानी कि अगर हम ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं तो वहां पर मिल्क से कैटल से ग्रास, एंड ग्रास से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट.
और अगर हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खत्म कर देते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म तो कैटल का खाना खत्म, कैटल का खाना खत्म तो मिल्क खत्म, एंड इन दिस मैनर एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. No doubt today we are having so many synthetic milk. We are having, I was one day looking into one YouTube का मैं एक चैनल देख रही थी, तो उसके अंदर देयर वाज एक मतलब की था दैट नाउ जो हमारे दूध वगैरह होते हैं दे आर मेड थ्रू द सिंथेटिक प्रोसेस. यानी कि जो कैटल से दूध निकलता है उनको दे मतलब कि उसको स्टरलाइज करते हैं, उसको पाउडर कर देते हैं, दे आर स्टोर्ड एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लोकल मार्केट जहां से उसको दोबारा से दूध का रूप दिया जाता है. The result is today we are not having the food which is very important. Today I can see my own daughter, I can see many of the children who fall ill. Today I was talking to her and मतलब there was some ऐसे कोई कन्वर्सेशन चल रही थी, तो शी वाज टेलिंग कि ये जो है मतलब बिकॉज ऑफ द मदर्स. तो मैंने कहा कि आई नेवर 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 फेल्ट इल. ये जो कोविड के टाइम में जो मैं 2 बार इल हुई हूं ना, दिस इज समथिंग अम्यूजिंग सरप्राइजिंग. बिकॉज मुझे और फीवर, वो मैं तो भगवान के आगे जाके हाथ भी जोड़ लूं, मजाक में नहीं सचमुच में भी प्याज निकाल के अपने अंदर रख लूं ना, तो भी मुझे फीवर नहीं आता. फीवर इज माई एनिमी, इट डजंट कम टू मी. खांसी, फीवर, ये सब तो मेरे लिए इन माई मतलब मैं काउंटिंग पे बता सकती हूँ हाउ मेनी टाइम्स आई हैड फीवर. मैं इतना कम फीवर में बीमार हुई. आई जो भी मेरे साथ हुआ तो कोई बोन से रिलेटेड या मैं गिर गई थी ऐसा कुछ था, अदरवाइज फीवर वीवर नहीं आता. आई वाज टेलिंग हर कि मैं तो शादी से पहले मुझे सर में भी दर्द नहीं होता था, एंड ओकेजनली कभी पैर में दर्द होता था तो हमारी पड़ोस में आंटी थी, वो कहती थी कि दुपट्टा लेकर ना अपने दोनों पैर में बांध कर रात को सो जाओ, ठीक हो जाएगा. और हम ऐसे ही करते थे, सो ठीक हो जाता था. कभी आई हैव नॉट टेकन एनी डिस्प्रिन, आई हैव नॉट टेकन एनी क्रोजिन. हमारे घर में मेडिसिन नहीं था. हमारे घर में इनफैक्ट मतलब मुझे बड़ा शौक था, व्हेन माय सिस्टर वाज इन स्कूल तो उसके स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स बना था, तो मुझे बड़ा शौक था कि फर्स्ट एड बॉक्स बने. हमारे घर में आफ्टर माय मैरिज आई बॉट अ थर्मोमीटर. हमारे घर में थर्मोमीटर नहीं होता था, बाकी तो कुछ दवाई होने की जरूरत ही नहीं थी. आई वॉज रेयरली, मेरे को कभी फीवर कुछ भी हुआ है. बड़ी डिजीज तो बहुत दूर की बात है. आज बच्चों का क्या है, दे आर मतलब कि पता नहीं हाउ मेनी फॉर 6 months she has been on bed, she is not getting well. There are my sister's son, yesterday he was telling me that he has -4.75 eyesight. अभी वो 9th स्टैंडर्ड में है, अगर उसका अभी है विजन तो आगे क्या होगा उसका विजन. This is because of the impurity. So we are getting the impure substances, the synthetic milk, the one. लेकिन जो purity है that is depleting because there is depletion in the overall environment. और ये जो चैप्टर है इसका मॉरल यही है कि दिस चैप्टर इज अ वेक अप कॉल टू द ह्यूमंस. If we do not want another tsunami to destroy in मतलब की the world, we do not want another any kind of tornado, any kind of earthquake that should completely devastate us, another Uttarakhand tragedy to happen. We need to take care of the smallest things. और उसने इन सब चीजों के लिए अंटार्कटिका क्यों लिया है, दिस इज योर क्वेश्चन विच हैज कम इन योर बोर्ड्स. दैट इज बिकॉज अंटार्कटिका इज द प्लेस जहां से वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है. The modern day countries have evolved from the land mass of Antarctica, पहला. Secondly, even today, the 650 million old आपके जो कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं, they are trapped in the ice of Antarctica, where you can study their evolution. Third, when you go to Antarctica, there you are प्रैक्टिकली सीइंग. अपने टीवी में बैठकर किसी चीज को देखना बहुत आसान है, बट व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस देम यू लर्न.
That is why she says it is Antarctica, not any other place. जो सेकेंड क्वेश्चन है कि why students, why not elders, why not anybody else, why not the celebrities, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. Students are the decision makers of tomorrow. They are the future citizens. They have the energy. Besides, जो celebrities and they are only for money and fame. They are not actually involved. That is. So this is the chapter Journey to the End of the Earth. Before I proceed to the next chapter, I want to take up, अब मैंने आपको बताया था 2 चैप्टर्स को मिलाकर एक क्वेश्चन आ सकता है, और you may be asked a question on the basis of the chapter to write a diary entry, to write a paragraph, to give a speech. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं? तो वैसे तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. से आपसे बोला गया है दैट, मतलब कि इस चैप्टर को हम कैसे को रिलेट करते हैं, मैं ये भी बता रही हूँ. आपको याद होगा, देयर इज वन चैप्टर इन योर बुक इंटरव्यू, in your first book, Flamingo, right? Now we are correlating interview with journey to the end of the earth. ठीक है. You are, पहला क्वेश्चन है, you are an interviewer who recently interviewed, जो आपकी नरेटर है, write a conversation. ये second is these questions can be there. I have left out the speech one. First I'm taking up this one. मतलब एक को रिलेट करना, किसी भी एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करना. लाइक हमारा उसमें चैप्टर है इंटरव्यू, तो हम उस चैप्टर को इंटरव्यू को यहाँ पर कर रहे हैं. एज एन इंटरव्यूअर वी आर राइटिंग अ कन्वर्सेशन. सेकेंड इज वी मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको काफी दुख हुआ दैट द वर्ल्ड ड्यू टू द human activities it is depleting. You are writing a diary entry, or you are one of the participant who was there on the students of ice. तो आपको अपना experience लिखना है on the basis of the chapter. These 3 can be the question from this chapter.
right? And of course, speech, which I'll take later. First, let us come to the interview part. Now, you are an interviewer and you have to interview तुषानी दोषी, जिसको आपने करना है. तो अब आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो? तो अगर आपका मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो मतलब लेट अस अज्यूम कि ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इंटरव्यूअर हो एंड दूसरा जो भी नरेटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क व्हाट वाज, मतलब कि व्हाट मेड यू टू पार्टेक इन सच एक्सपेडिशन, मतलब आपको ऐसे एक्सपेडिशन में जाने के लिए क्या मोटिवेशन था. देन वो अपना बताएगी कि स्टूडेंट ऑफ आइस जो प्रोग्राम है वो मतलब कि इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ जियोफ जॉग. देन इसी चैप्टर में जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, व्हाई ओनली स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व नॉट द सेलिब्रिटीज, मतलब आप उसी के अंदर से दो तीन क्वेश्चंस को निकाल लो. यू डोंट नीड टू राइट योर ओन ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू राइट, आप मतलब कि इसी में से जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसी में से आप निकाल लो. तो इसका आपको पता नरेटर क्या जवाब देगी, दैट स्टूडेंट्स आर द डिसीजन मेकर्स एंड जो सेलिब्रिटीज होते हैं दे वर्क फॉर मनी एंड फेम, वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा. देन आप तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप मतलब कि व्हाट सजेशन या फिर व्हाट एडवाइस यू वांट द पीपल टू फॉलो. उसमें आप बता सकते हो दैट दिस इज अ वेकअप कॉल. तो इसी तरीके से यू कैन फ्रेम 3 to 4 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट. आपको उससे ज्यादा नहीं करना है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ यू आर, आपने इस चैप्टर को पढ़ा और चैप्टर को पढ़ने के बाद आप दुखी हो गए. आपने देखा कि कैसे ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द आइस a large landmass like Gondwana has drifted into small lands. दूसरा आपने देखा that due to the melting of the glaciers there is climatic changes. Then आपने देखा that small things like phytoplanktons which are microorganisms, लेकिन अगर हम उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो देन आपका जो है यू आर मतलब कि वी आर नॉट एबल टू लुक आफ्टर द एंटायर साइकिल. तो एज अ डायरी एंट्री आपको लिखना. तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री? इट इज डेट, जो भी आपका डेट है, you can write the time on the extreme right also, or you can write beneath this. कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपको, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन टाइम लिखना है. एंड नॉर्मली हम लोग जो टाइम है वो शाम का डालते हैं, रात का डालते हैं, 8 PM 9 PM 10 PM, बस टाइम. देन this word dear, we normally start our diary with हम डियर the डायरी आएगा. first expression what we are feeling. हम डियर Today डायरी आएगा. we read the हेलो. chapter हम Journey to डियर the डायरी End आएगा. of the Earth, हेलो. and after reading the chapter, after reading the article, I was appalled, I was shocked. अगर आप खुश हो तो खुश लिखोगे, दुखी हो तो दुखी. इसमें तो हम लोगों का क्वेश्चन नहीं है यू आर सैड. फिर आप बताओगे कि आप सैड क्यों हो. थ्रू दिस चैप्टर आई केम टू नो दैट small things make big differences. As a human, we are very ignorant. The chapter gives us a clear cut indication
that if we are not saving today, tomorrow will be catastrophic. Catastrophic matlab vinashkari. The author narrated her experience, that how she felt when she walked on the ice, and how she felt when the glaciers melted in front of her. It is said that 650 million years old carbon is trapped here. Rather, it is very surprising. It is a wake-up call for all of us. इसे ज्यादा लंबा नहीं लिखना है क्योंकि आपका 6 मार्क का ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है. It is a wake-up call for all of us that we must start taking care of the small things so that big things put into their places. Bye. See you tomorrow. Bas. This is diary entry. अब यही डायरी एंट्री हमारी सेकंड है. यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड. अब आपको स्टूडेंट तो हो नहीं जिसने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपने उसमें जितना भी ट्रैवलॉग है उसका पढ़ा. that they had to pass through 9 time zones, they had to pass through different मतलब कि water bodies. उसको आपने as a diary entry, उसको आपने as your own experience बताना है. that I am too happy, पहले तो लिखोगे कि आप बहुत खुश हो. that today I came back from the Students on Ice program. The Students on Ice program is an initiative by Green Geoff, who takes students like us to understand the earth and its future. We crossed 9 time zones, different time body. It was very, very difficult. At times I was so scared. At last we reached Antarctica. It was like a magic, like a ping pong ball to walk on the ice. We could see the penguins, the seals sunbathing, the earth's carbon trapped in the glacier, the whales beneath the pure water, the glaciers melting in front of us. It was an exotic moment. इसमें one more you can correlate keeping quiet. जो poem keeping quiet है हम उसको भी इससे relate कर सकते हैं. It was an exotic moment without any rush, without any noise, without any buildings, without any tree, no mobiles, no communication. Yet it was so pure. I wish I can join such much more programs. Damn tired. See you tomorrow. Bye. Bas. This is the diary entry that you can write if you have to write yourself. मैंने यहाँ पर जो है इंटरव्यू चैप्टर से इसको रिलेट किया था. द सेम चैप्टर कैन बी रिलेटेड विथ कीपिंग क्वाइट ऑल्सो, क्योंकि कीपिंग क्वाइट इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ वेन यू आर क्वाइट. और अगर आप अंटार्कटिका के चैप्टर को पढ़ते तो उसके अंदर यही है कि वहां कोई शोर नहीं है, वहां कोई इंजन नहीं है, वहां कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, वहां कोई भी जो है अहाम नहीं कर रहा है. वहां खड़े होकर हम अर्थ को डिप्लीट होते हुए देख सकते हैं. तो यू कैन कोरिलेट. दिस इज डायरी एंट्री. अब इसी चैप्टर का मान लो आपका क्वेश्चन आ गया स्पीच का. एंड दिस ये जो मैं आज करवा रही हूं ना बच्चा, दिस विल बी रिलेटिंग टू ऑल योर चैप्टर्स. हर चैप्टर में से इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे लिखना है. आई एम टेलिंग यू द फॉर्मेट इफ इट कम्स. अब स्पीच है.
मैम मेरा ही पेपर है। जस्ट इस चैप्टर से देर इज लॉट्स ऑफ chances that you may be given such topic. Write a speech on consequences of global warming, क्योंकि ये चैप्टर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, या इट मे बी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स फॉल इनटू प्लेस. तो इफ द स्पीच कम्स, मतलब इस चैप्टर से ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है. योर लिमिट विल बी 80 to 100 वर्ड्स. अगर लिटरेचर से आपके स्पीच आएगा, आई एम अगेन गिविंग यू, लिटरेचर से अगर आपका स्पीच आया, लिटरेचर वाले सेक्शन में आया, तो आपको इतना लिखना है. दूसरा, आपका राइटिंग स्किल्स अलग है, तो अब आपको स्टार्टिंग वही देना है. यू नीड टू गिव द ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको देना है वो. Then you have to introduce your topic. Today I'm going to express my views on the topic, जो आपका टॉपिक है, जो भी है. And then start with a quote. As it is well said, take care of small things and big things fall into place. या फिर global warming is a wake up call for humans. Yes, my dear friends. Yes, my audience. क्योंकि हम सुनते हैं इसीलिए ऑडियंस. It is a well-known fact that today we all are living in the threat of global warming. This can be very well cited from the recent changes in the climate. The climatic changes have a drastic impact on everything what we do, whether it is the agriculture, industries, or our day-to-day life. As we are well aware about the chapter Journey to the End of the Earth, जब आपका चैप्टर से रिलेटेड स्पीच आता है, चाहे वो चैप्टर कोई भी क्यों ना हो, एनीमी हो, टाइगर किंग हो, इंटरव्यू हो, पोएट्स एंड पैनकेक्स हो, उसका नाम उस स्पीच में जरूर ऐड होगा. The name of that chapter will be added in that particular question, क्योंकि तभी वो क्वेश्चन को जस्टिफाई करेगा. तो आपको बताना है that as we have gone through the chapter, my friends, we all are aware about the chapter Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi, which gives the experience of her journey to Antarctica, the place where the students study the evolution of Earth. We have seen that the Earth was a big landmass, which due to the rising temperature drifted into different parts, broke into different parts. We can see that melting of glaciers, as per the scientist, is the reason for volcanoes, oceanic volcanoes, earthquakes, and apart from that, tragedies like, the disasters like tsunami. It not only destroys the people, the land, but also the flora, fauna, and the aquatic animals. The chapter is a wake-up call. We all need to pull our socks. मैं तो थोड़ा सा फ्रेजल लिखती हूँ, आप अपना सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो. It's a high time when we need to pull our socks and ponder on the importance of saving our planet Earth. As the chapter reveals
the importance of a microorganism phytoplankton. Similarly, our small efforts can be a contribution to a larger extent. So, my friends, let us take the pledge to save the earth from further global warming. With this, I give a stop to my words. Thank you. बस इतना. मतलब आपका जो ये वर्ड है लिमिट है वो 80 to 100 होगा. You can write only in one paragraph. You don't need to, मतलब लिटरेचर में मैं again and again I'm repeating in literature you don't need to divide it into 2 or 3 paragraphs. छोटा लिखना है लेकिन फॉर्मेट को पूरा फॉलो करना है. फॉर्मेट मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ग्रीटिंग्स देना है, थैंक यू देना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है और अपनी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है. So this is how one chapter can be related to another chapter. One chapter can be asked as a diary entry. It can be asked to frame an interview, frame a conversation, or it can be a simple paragraph. और तो आपका जो है क्वेश्चंस के जो चेंज मतलब की जो वेज है वो ऐसा हो सकता है. तो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच चैप्टर. यू कैन थिंक ऑन दिस ग्राउंड. लेकिन जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था थर्ड लेवल था. थर्ड लेवल में आपका अगर हम देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है तो पैराग्राफ आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. आजकल वैसे भी हर जगह घंटी बज रही मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ. जब से वो सुशांत सिंह राजपूत का जो मतलब की हुआ है उसके बाद से एक चीज बज रही है कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आजकल तो सीरियल के अंदर भी उस चीज को डालते हैं. टुडे आई वाज वाचिंग ओनली फॉर 5 मिनट्स आई वॉच अनुपमा. उसमें भी वो बोल रहा होता है कि देखो आजकल लोग 20 साल में ही जिम में मर जाते हैं. आजकल जो है स्ट्रेस लेवल ज्यादा है. तो थर्ड लेवल से रिलेट करके मेंटल हेल्थ हो सकता है. टाइगर किंग इज एनवायरनमेंट. देन पावर प्ले. ये वाला चैप्टर इज सपोज इट इज हैविंग मेनी थीम्स. एनिमी आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब कि एंडिंग द हेट्रेड. पेट्रियोटिज्म मतलब जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे हम थीम को करेंगे तो उससे रिलेट करके इट कैन कम एज एनी वन क्वेश्चन. इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो जैसे आते थे. बट दिस टाइम it has been said कि indirect questions will be part of literature. Hope you all are now able to understand what kind of questions can be there.